Good morning, everyone. Let us start with a new topic. Okay, today we will start with a new topic called circles. Okay, so let us understand what is a circle. Okay, सर्कल सब जानते होंगे कि सर्कल की फिगर क्या होती है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कल दैट वी विल टुडे वी विल स्टडी. ओके, टुडे वी विल स्टडी व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, सो राइट इट डाउन. ठीक है, व्हाट इज अ सर्कल? राइट इट डाउन. अ पाथ फॉलोड बाय collection. Okay, a path followed by a collection of infinite points. A path followed by a collection of infinite points whose distance from a fixed point is same. ठीक है, so what is the definition of circle? ठीक है, a path followed by a collection of infinite points whose distance from a fixed point is same. Okay, so let us understand this. ठीक है, through an example. Okay, एक फिगर बना देते हैं अच्छे से. ठीक है, so path followed by a collection of infinite points. Points क्या है? Infinite है. Infinite का मतलब क्या होता है? बहुत सारे points हैं, you cannot count it. ठीक है, uncountable collection of points there. ठीक है, so first of all let us fix a point. ठीक है, जो fixed point इसको fix कर लेते हैं. Suppose this is a fixed point. Okay, this is a fixed point O. ठीक है, now what is the definition of circle? A path followed by a collection of infinite points. A path followed by a collection of infinite points. तो बहुत सारे points whose distance from a fixed point is same. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ बहुत सारे points बना देते हैं. ओके, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली सारे पॉइंट्स तो बना नहीं जा सकते, जितने आप बना सकते हो उतने बना लो. ठीक है, ठीक है, तो ये सारे मैंने पॉइंट्स बना लिए और इनका जो पाथ होता है वही सर्कुलर होता है. क्या होता है? सर्कल होता है. ठीक है, तो पाथ फॉलोड बाय, पाथ का मतलब है कि आप इन सबको जोड़ दो साथ में. ठीक है, a path followed by a set of points whose distance from a fixed point O is same. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी सेम होगा, 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 ये सब सेम होगा. Okay, so this is a path followed by a set या collection of infinite points whose distance from a fixed point O is always same. ठीक है, तो the path will be called circle. The path followed by the points will be called circle. Okay, so please make a note of this. This is the definition of circle. Okay. So now you know what is a circle. Okay, circle क्या है? Circle is a path followed by a collection of infinite points whose distance from a fixed point is always same. ठीक है, so now we will draw a circle. ये circle हो जाएगा. This is a circle I have drawn. इसका मिड पॉइंट, इसका जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है? O, and O is called the center of the circle. O is also called the center of the circle. सर्कल का सेंटर भी होता है O. ठीक है, और ये सेंटर है क्या? बेसिकली इट इज अ फिक्स पॉइंट. ठीक है,
एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम विद ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्किल। जो सर्किल पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उससे इसका डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम रहता है, ठीक है। एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम विच दिस फिक्स पॉइंट इज, मतलब ये आप समझ लो कि ये सारे के सारे जो डिस्टेंस है, ठीक है, सारे जो यहाँ पॉइंट्स होंगे उनका एक फिक्स डिस्टेंस होता है और वो डिस्टेंस हमेशा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। नाउ देन व्हाट इज द डायमीटर, ठीक है, व्हाट इज द डायमीटर? तो डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 2r, तो d कैन बी रिटन एज 2r, ठीक है। अगर आप ये एक इसको एक रे अज्यूम करो कि इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट और ये यहाँ तक जा रही है, तो इसको आप पीछे बैकवर्ड से करो, पीछे बैकवर्ड की तरफ इसको आप मूव करो, ठीक है। पीछे आपने बैकवर्ड इस रे को एक्सटेंड कर दिया पीछे बैकवर्ड्स, ठीक है। तो दिस होल A and B, this whole distance AB will be called the diameter of the circle, and OB, which is half of the diameter of the circle, is called the radius of the circle. Okay, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। Please make a note of this. Now let us understand what is the circumference. Circumference of a circle. What is the circumference of a circle? ठीक है, सर्कल का circumference क्या होगा, ठीक है। So circumference of a circle is like a perimeter of a circle, ठीक है। वैसे किसी भी चीज़, किसी भी फिगर का पेरीमीटर होता है तो वही चीज़ जो है वो सर्कल में सर्कमफ्रेंस कहलाती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? नाउ पेरीमीटर, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय सेट ऑफ पॉइंट्स बोले, यहाँ क्या बोले, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। लेंथ ऑफ बाउंड्री का क्या मतलब है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। आई हैव सेट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट हमने सेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ फिक्स पॉइंट हुज डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट फिक्स किया, सपोज पॉइंट दिया है फिक्स्ड, ठीक है। तो इससे क्या किया, मैंने मूव किया इसको। कैसे मूव किया मैंने, आई हैव मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कैसे मूवमेंट किया, सपोज करो कि मैंने ऐसे मूवमेंट किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट किया मैंने, ठीक है। मूवमेंट किया, ठीक है, वापस, ठीक है, और वापस मैं रुक के पे आ गया, ठीक है। तो पूरा ये जो हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जितना भी डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है, दैट विल बी कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। आई केम बैक टू दिस पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। सो इफ यू आर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, इट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यू विल बी कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय कैपिटल C, ठीक है। इट इज रिटन एज कैपिटल C and its formula is 2 pi r, where r is the radius, you already know r क्या है, रेडियस है, r is the radius, ठीक है। रेडियस क्या होता है, ये फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। ये सब फिक्स डिस्टेंस जो है ये पूरी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस में क्या है कि ये पॉइंट फिक्स है और यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लो सर्कल में, ठीक है। तो उसके बीच में डिस्टेंस होगी हमेशा सेम होगी और वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड पाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पाई बोलते हैं। इट हैज अ फिक्स वैल्यू, पाई की फिक्स वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, ठीक है। एज द क्वेश्चन विल डिमांड, कभी आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे पाई की, कभी आप वैल्यू पुट करोगे पाई की, ठीक है। एनी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है।
So what is the circumference of a circle? If someone asks you what is the circumference of a circle, so you will say that the distance traveled by, या the distance, या आप ये कह सकते हो distance ना बोल के आप ये बोलो कि length of boundary, ठीक है, length of boundary of the circle या of the path followed by a set of infinite points is called the circumference of the circle, ठीक है, क्योंकि perimeter same thing is there, ठीक है, perimeter of a circle and circumference circle both are same, ठीक है. So write it down, ठीक है, make a note of this. Now let us understand what is area of a circle, ठीक है, area of a circle. What is area of a circle? ठीक है, write the heading as area of a circle. ठीक है, तो सर्कल बनता कहाँ पे है? बेसिकली सर्कल इज द टाइप ऑफ फिगर, ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ कर्व. तो कहाँ बनेगा? हमेशा एक प्लेन पे बनता है, ठीक है. सर्कल क्या बनता है? हमेशा एक प्लेन पे बनता है, ठीक है. अगर वो एक प्लेन पे बनेगा, सिंस सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है, सर्कल क्या है? एक क्लोज कर्व है, सो इट विल इनक्लोज एन एरिया, ठीक है, वो एक एरिया को इनक्लोज करेगा हमेशा. सो दैट इज व्हाई देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, ठीक है, वो हमेशा किसी रीजन को इनक्लोज करेगा. तो कोई भी फिगर अगर किसी रीजन को इनक्लोज करती है, ठीक है, इनक्लोज करने का मतलब है कि किसी रीजन को बाउंड करती है, तो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑलवेज कम्स देयर, ठीक है. सो राइट द डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल. The region enclosed by a circle, the region enclosed by a circle on a surface of plane is called area, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होती है. जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, बेसिकली दिस इज अ ग्रीन बोर्ड. तो ये क्या है? ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेन. इस पे हम लोग क्या बना सकते हैं? सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज सर्कल इज अ कर्व, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया एक सर्कल को, ठीक है, हम लोगों ने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, दिस इज अ सर्कल, ठीक है. इसका जो फिक्स पॉइंट है सेंटर, उसको फिक्स कर लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो बेसिकली अगर ये पूरा एक प्लेन है, अगर ये पूरा एक प्लेन है, तो ये क्या है? ये एक इस पूरे प्लेन के कुछ रीजन को एनक्लोज कर रहा है. कौन से रीजन को एनक्लोज कर रहा है? इस रीजन को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है. तो दिस रीजन विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है. दिस होल रीजन विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है. दिस होल रीजन विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कल. एंड एरिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. एरिया किससे डिनोट होगा? कैपिटल ए से डिनोट होगा, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है. इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. फिर आर यू ऑलरेडी नो व्हाट इज आर. आर इज रेडियस एंड पाई इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 22/7 और 3.14 एज द क्वेश्चन डिमांड्स, ठीक है. कभी कभी वैल्यू होती है 22/7, कभी कभी 3.14 भी हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, ठीक है. तो दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर रीजन, ठीक है. एरिया को हम लोग जैसे एक सर्कल इसको एनक्लोज कर रहा है, तो ये सर्कुलर रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है. एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है, एरिया ऑफ सर्कल आर वन ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है. सो राइट इट डाउन, ठीक है. मेक अ नोट ऑफ दिस. सारी जो फिगर्स बनेगी सबकी सब पेंसिल से बनेगी, कोई भी पेन से नहीं बनाएगा, ठीक है. एवरी ईच एंड एवरीथिंग जो लेबलिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सबकी सब किससे बनेगी? पेंसिल से बनेगी, ठीक है.
ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी अब यही इतनी थी, ठीक है। सर्कल, डेफिनेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, व्हाट इज सर्कल, डेफिनेशन, ठीक है, एंड एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। वो आप सब जान गए हैं क्या क्या है, उसकी डेफिनेशन भी आप जान गए हैं, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस बिगिन विद सम क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं तो चीज़ें और समझ में आएंगी, ठीक है। सो राइट इट डाउन। एक्सरसाइज कौन सी है? 13.3 एक्सरसाइज, 13.3 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फॉलो योर बुक। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, ठीक है। रेडियस दे रखा है, रेडियस इज गिवन टू अस as 7 cm and we have to find what? We have to find the circumference of the circle, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार पूरी चीज़ लिखें, सर्कमफ्रेंस लिखें। सर्कमफ्रेंस आपको पता है, एरिया आपको पता है, कैपिटल ए से डिनोट होता है, सर्कमफ्रेंस आपको पता है, कैपिटल सी से डिनोट होता है, रेडियस स्मॉल आर, डायमीटर स्मॉल डी, ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो सी जो है आप उसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, सी आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो सी क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लो तो 2 इंटू पाई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, 2 22/7, ठीक है। जब तक डेटा नहीं दे रखा है कि पाई की वैल्यू को 3.14 अज्यूम करना है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, 22/7 ही इसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई कितना है, 22/7, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। सो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वुड बी व्हाट, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। 44 सेंटीमीटर क्यों आया, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं आया? बिकॉज दिस इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, और लेंथ क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब होती है, ठीक है। दैट इज वाई जो यूनिट रेडियस की होगी वही यूनिट सर्कमफ्रेंस की भी होगी, सेंटीमीटर, ठीक है। So let us move on to question number. इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट होमवर्क है, ठीक है। सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। मैं डायरेक्टली थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 22 mm, ठीक है, 22 में दे रखा है, सॉरी 28 mm दे रखा है, 28 mm, 28 मिलीमीटर, ठीक है, 28 मिलीमीटर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल सी दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, कितना आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, बेसिकली 44 इंटू 4 आ जाएगा, तो इसका कितना आंसर आएगा, 176 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर मिलीमीटर है, बिकॉज द यूनिट ऑफ सर्कमफ्रेंस करस्पॉन्ड्स टू द यूनिट ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये भी अगर mm है तो ये भी हमेशा mm ही होगा, मिलीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो होगा, ठीक है। Second and fourth part is homework that you have to do, ठीक है, on your own. Now let us move on to question number 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कौन से पार्ट करेंगे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सर्कल गिवन दैट रेडियस इज इक्वल टू 14 mm, रेडियस दे रखी है 14 मिलीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है, 14 मिलीमीटर दे रखी है, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया अननोन है, एरिया दे रखा है, एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, यू ऑलरेडी नो, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी है,
22/7 अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड आप पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लोगे, आप कितना लोगे 22/7 ही लोगे। ओके 22/7 एंड आर स्क्वायर का मतलब क्या है 14 स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 आ जाएंगे, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा है ना, फिर कितना आ जाएगा 44 इंटू 14। आप इसको कैलकुलेट करिए, 44 इंटू 14 कितना आएगा। ठीक है, साथ साथ करते चलिए। 176 कितना आएगा 446 115 ये कितना आ जाएगा 5 6 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा। एंड दिस इज द एरिया। एरिया जानते हैं इसमें होता है स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिली mm स्क्वायर, कितना हो जाएगा mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 616 मिलीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, और यू कैन से एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सारा काम जो आपने मल्टीप्लिकेशन वाला किया है इसको यहाँ पे रफ कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में रफ कॉलम बनाना सीखिए और वहाँ पे सारा काम करिए। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन वाला है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन जो आप करते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग इन योर हैंड्स, कई लोग हाथ में करते हैं, कई बच्चे हाथ में करते हैं, ठीक है, कई बच्चे पीछे करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको आप रफ कॉलम बनाना सीखिए, एक्सट्रीम राइट में रफ कॉलम बनाइए और वहाँ करिए सारा का सारा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है हम लोग को, थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या करना है, डायमीटर इज गिवन टू अस। डायमीटर कितना दे रखा है डी 9.8 मीटर दे रखा है। फॉलो योर बुक, 9.8 मीटर इज द डायमीटर गिवन टू यू एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ही कैलकुलेट करना है, पर डायमीटर का कोई भी फॉर्मूले से कोई रिलेशन होता नहीं है, बेसिकली रेडियस से होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। रेडियस इज हाफ द डायमीटर, आप जानते हैं रेडियस इज हाफ द डायमीटर, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस एंड रेडियस इज हाफ द डायमीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 4.9 मीटर आ जाएगा। ये कितना है 4.9 मीटर आएगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट एरिया। हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया में क्वेश्चन हम लगा दीजिए। तो एरिया गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से एरिया गिवन होता है। ठीक है, तो 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से रिमूव कर देंगे तो डिनोमिनेटर में कितने आ जाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, एन नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये कितना आ गया 22 इंटू 7 इंटू 49 और नीचे आ रहा है 100, नीचे आ रहा है 10 इंटू 10 100 आ रहा है। ठीक है, तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप इसको फर्दर रिड्यूस ना करो, जो भी न्यूमरेटर में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना आएगा 22 इंटू 7 तो आप ऑलरेडी मेंटली भी कर सकते हो, कितना आएगा 22/7 कितना आएगा 22 इंटू 7 कितना आएगा 154 आना चाहिए, 154 आएगा। ठीक है, तो 154 को हम लोग मल्टीप्लाई करना है, जिससे 49 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, साथ साथ करिए। ठीक है, चेक करिए साथ साथ। ठीक है, तो कितना आएगा 7546, कितना आ रहा है 7500, कितना आ रहा है 7546 आ रहा है, नीचे कितना आएगा 100 आएगा। ये कितना आ रहा है
75.46 and what? Meter square. 75.46 मीटर स्क्वायर. ठीक है. एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी फास्ट करिए. ठीक है. मैक्सिमम से मैक्सिमम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. इसका भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या करना है हम लोग को? थर्ड, सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज होमवर्क. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट क्या है? होमवर्क है. ठीक है. हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 करना है हम. क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रहा हूँ. फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब रेडियस दे रखी है हम लोग को 20 सेंटीमीटर. ठीक है. और क्वेश्चन के आगे ये भी लिखा हुआ है कि वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14. ठीक है. तो मैंने आपसे पहले बोला था कि वैल्यू ऑफ पाई आप तभी 3.14 लेंगे अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड. ठीक है. तो इसमें स्पेसिफाई कर रखा है तो आप 22/7 को ना लेंगे, 3.14 लेंगे. किसकी वैल्यू? पाई की वैल्यू. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? रेडियस गिवन टू अस एज 20 सेंटीमीटर. वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं और फिर हम लोग क्या निकालना है? एरिया निकालना है. ठीक है. तो पहले हम लोग सर्कमफ्रेंस निकालते हैं. तो सी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा. ठीक है. तो सी इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन बाय 2 पाई आर. तो 222/7 इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी है, 3.14 पुट करनी है. ठीक है. तो यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे? 3.14 पुट करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 3.14 पुट करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 20. ठीक है. अब इसमें क्या करेंगे? इफ यू विल रिमूव द डेसिमल पॉइंट तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे फॉलोड बाय 1. ठीक है. अब ये इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? यह जाएगा 5 का. ठीक है. ये चला जाएगा 5 का और उसके बाद ये फर्दर कैंसिल नहीं होगा. ठीक है. और इसमें और कुछ कैंसिल नहीं होगा. ठीक है. तो आप इस पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं इसको. तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू बोल रहे हैं 2 इंटू 314 कितना हो जाएगा? 628 डिवाइडेड बाय 5. 628 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है. अब इसको डिवीजन करते हैं. ठीक है. इसको हम लोग मेंटली भी कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो. ठीक है. तो जाएगा 1 के बाद ये आगे कैरी होगा 1 आएगा तो 12 आएगा. यहाँ पे आएगा 2 का. फिर आगे कैरी होगा 28 तो आएगा 5 का. ठीक है. और फिर ये आगे जाएगा 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये पूरा का पूरा चला जाएगा. ठीक है. तो 125.6 सेंटीमीटर मीटर सर्कमफ्रेंस. ये क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस हो जाएगा. ठीक है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया. एरिया कैलकुलेट करना है. तो ए इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. ठीक है. ए इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू आर. आर की वैल्यू कितनी है? 20 है. 20 का स्क्वायर करना है. 20 इंटू 20 दो बार लिखेंगे. ठीक है. यहाँ से हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट उठाया नीचे 2 जीरो आएंगे. ठीक है. इससे ही कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? इसको अभी फर्दर और भी कैंसिल कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाई करने से बेटर ये है कि पहले कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि 5 का चला जाएगा ऊपर. ठीक है. 20 से. ठीक है. फिर कितना आ जाएगा? 4. अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है. अब ये कितना आ जाएगा? 1 2. ठीक है. तो 1256. ठीक है. ये कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. इसी का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. ठीक है. सो आई होप आपको ये आज का जो वीडियो लेक्चर है ये समझ में आया होगा. ठीक है. आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए. जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी करिए. 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो भी आपको करना है. ठीक है. ओके. So please make a note of this. Okay. Thank you class.